Good morning everyone. Today we will start preparation of haloalkanes from unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means all those hydrocarbons in which at least one carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond will be present, right? If carbon-carbon double bond, it means alkenes. Carbon-carbon triple bonds, it means alkynes. Now, how can we prepare haloalkanes with the help of unsaturated hydrocarbons? alkenes और alkynes की हेल्प से हम haloalkanes का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स इट विल शो अप डेफिनेटली बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पर एडिशन रिएक्शन होगी. तो इन दिस केस alkenes एंड alkynes शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ आइदर हेलोजन और हेलोजन एसिड्स. तो वही हमें अब पढ़ना है. So look at this, alkenes and alkynes, these show electrophilic addition of halogen and halogen acid. Firstly we will study about addition of halogen. अगर हम halogen का addition कराते हैं तो dihaloalkanes will be formed. Look at this, suppose there is ethene और ethene पर अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाए तो it gives out CH2Cl CH2Cl like this. It is dichloroethane. तो यही चीज़ आपको बताइए कि डाइहैलोएल्केन्स विल बी फॉर्म्ड कब? जबकि कि हम हैलोजन को ऐड कराएं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर. ऐसे ही इसी केस में इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं जिसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हम सब जानते हैं बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए रिएक्शन कराया जाता है एल्कीन्स या फिर एल्काइंस का मींस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ब्रोमीन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. What is the purpose of taking bromine water? And we all know that bromine water color is reddish brown in nature. और जब bromine water को किसी भी unsaturated hydrocarbon में ऐड किया जाता है then it will give addition reaction. It means bromine water consumed to give dibromo, tetrabromo alkane or other derivatives. It means reddish brown color of bromine water will get discharged or fades. That's why it indicates that present compound would be the unsaturated hydrocarbon. तो ये है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन. टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में हमें पता लगता है एक पार्टिकुलर रिएजेंट या पार्टिकुलर गिवन कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं है. अगर ब्रोमीन वाटर का कलर फेड होता है इट मीन्स पार्टिकुलर कंपाउंड अनसेचुरेटेड है और अगर कलर फेड नहीं हुआ इट मीन्स दिस इज सेचुरेटेड वन. विथ ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करानी है CCl4 की प्रेजेंस में. रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर गेट फेड्स एंड डिस्चार्ज व्हेन इट इज़ एडेड टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जब इसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर ऐड किया जाता है तो ब्रोमीन वाटर का कलर या तो फेड हो जाएगा या डिस्चार्ज होने लगता है. लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अगर मैं ब्यूटुइन लिया है ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट गिव्स आउट व्हाट CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CHBr CH3. इट इज़ 2,3 dibromobutane. Now what? Bromine water is consumed with the or reacted with the alkene and then color of the bromine water get fades and this compound will convert into the saturated dibromoalkane. Now next reaction, addition of halogen acids. After halogen we will study about the addition of the halogen acid. Halogen acids it may be HCl, HBr, HI. जब halogen acids की रिएक्शन कराई जाती है तब haloalkanes का फॉर्मेशन होता है. और what is the reactivity order? Which is most reactive halogen acid? This is the HI. HI is the most reactive halogen acid. So what is the series? What is the reactivity order? This is HI, then HBr and then HCl and haloalkanes are formed. Now we studied about the addition of HX to symmetrical alkane. अगर हम symmetrical alkene अगर symmetrical alkenes पर किसी भी हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराया जाए एडिशन कराया जाए तो उसके इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. लाइक अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ईथीन. इथीन पर रिएक्शन कराते हैं लेट सपोज HBr तो इट गिव्स आउट व्हाट CH3 CH2Br. इट मीन्स वन ब्रोमो ईथेन. आइदर दिस कार्बन और दिस कार्बन
Br नेगेटिव कैन ऐड टू दिस कार्बन और दिस कार्बन, चाहे वो किसी भी कार्बन पर ऐड हो, प्रोडक्ट तो 1 ब्रोमो इथेन ही बनना है. इट मीन्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. वन मोर एग्जाम्पल वी कंसिडर, दैट इज ब्यूटुईन. अगर ब्यूटुईन पर लेट सपोज HCl का रिएक्शन कराया जाता है, इट गिव्स आउट CH3, CHCl, CH2, CH3. In any respect, it will give 2-chlorobutane either on this carbon or this carbon. Means Cl negative can add to this carbon and this carbon, either carbon number 2 or carbon number 3. Product will be same 2-chlorobutane. तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स की अगर बात करते हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर अगर हैलोजन एसिड्स के रिएक्शन कराते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है. बट अगर हम यहाँ पर बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में एडिशन मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा और उस केस में 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलो एल्केन्स मेजर प्रोडक्ट होंगे. लुक एट दिस, व्हाट आई वांट टू से, लेट्स सपोज प्रोपीन लाइक दिस. ठीक है, प्रोपीन पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं HBr, देन प्रोडक्ट्स में बी CH3. Now look at this carbon and this carbon, these are the doubly bonded carbon, and we know that Br negative can attach to carbon number 1 and carbon number 2 both. If it adds to carbon number 1 bromopropane will be formed. If it adds to carbon number 2, then 2 bromopropane will be formed like this. So product will be CH3 CHBr CH3. And second product will be CH3 CH2 CH2Br. It means 2 bromopropane and 1 bromopropane. 2 products are possible in case of propene, but out of these, which is major one, which is either 2 degree or 3 degree, and out of these 2 products, this is 2 degree bromopropane and this one is 1 degree bromopropane. हम डिग्री निकालना पहले सीख चुके हैं. वो कार्बन जो ब्रोमीन, ब्रोमो, क्लोरो या आयोडो से अटैच्ड है, अगर कितने कार्बन से अटैच्ड है हमें ये देखना है. इन दिस केस दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स. इट मीन्स it is 2 degree bromopropane and this one is 1 degree bromopropane. So according to rule, according to the Markovnikov's rule, which is major product, which is either 2 degree और 3 degree, जितनी ज़्यादा डिग्री बढ़ती जाएगी वो मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा. तो आउट ऑफ दीज 2, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट. अब मार्कोनिकॉव्स रूल है क्या? अब मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग पता कैसे लगा कि यही मेजर प्रोडक्ट है? तो मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है जो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है. अब HBr में अगर आयनाइजेशन करते हैं तो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ये दोनों ही आयन्स बने. आउट ऑफ दीज विच इज़ नेगेटिव आयन? ब्रोमाइड आयन. तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल्स ये कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. तो अब इस एल्कीन में आप डबली बॉन्डेड कार्बन देखिए कौन से हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2. Carbon 1 has 2 hydrogen and carbon 2 has only 1 hydrogen. So according to rule, negative part of attacking reagent will attach to which carbon? Which has lesser number of hydrogen. Multiple bonded carbon which has lesser number of hydrogen. It means 2. It would be major product. तो major product क्या बनता है? 2 bromopropane. 1 bromopropane is also possible, but it would be minor product और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट्स ही कंसीडर करते हैं. तो ये था मार्कोनिकॉव्स रूल. अब आता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. एंटी का मतलब जस्ट ऑपोजिट. डेफिनेटली कि वो मार्कोनिकॉव्स रूल का जस्ट ऑपोजिट होगा एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट. वाई पेरोक्साइड इफेक्ट? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, जब हम HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर कराते हैं, तो इन दैट केस नेगेटिव पार्ट ऑफ द HBr विल अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैज़ लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट इज़ जस्ट रिवर्स. इट मीन्स व्हाट? यहाँ पर हमने कहाँ अटैच किया था? डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बट इस केस में हम कहाँ ऐड करने वाले हैं नेगेटिव पार्ट? द डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. लाइक
प्रोपीन में ही अगर हम देखते हैं HBr का एडिशन कराया जाए तो इट गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और peroxide CH3 CH2 CH2Br as major product and CH3 CHBr CH3 as minor product. It is major one and it is minor one. We can use peroxide. It may be benzoyl peroxide C6H5COO whole twice. It is benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide can be taken for this reaction. So it is just reverse of the Markovnikov rules. That's why it is known as anti-Markovnikov's rule. Now ये तो था प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का, लेकिन अगर हम एलाइलिक हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन एल्केन्स नहीं बनेंगे बल्कि एल्कीन्स पर ही एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन होगा. एलाइलिक का मतलब वी नो दैट लेट्स सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इस केस में अगर मैं बोलती हूँ कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी है तो वी मस्ट नो दैट द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इससे नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है. इसका मतलब हेलोजिनेशन कौन से पोजीशन पर होना चाहिए, इस कार्बन पर होना चाहिए. तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन. तो हेलोजिनेशन अकर एट द एलाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन कॉल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन. एंड एलाइलिक हेलोजिनेशन के लिए क्या करना है, एल्कीन की रिएक्शन आइदर विद ब्रोमीन और क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 500 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 773 केल्विन टेम्परेचर. तो वहाँ पर हेलोजिनेशन एलाइलिक पोजीशन पर होगा. देखिए एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. लेट्स सपोज रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन पर, तो एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है दिस वन. ओके, इट मीन्स 3 ब्रोमोप्रोपन इन. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज क्लोरीन का कराया, it gives out what, CH2Cl. again chlorination will takes place at allylic position. अब ये तो था सिंपली हीट किया गया है, बट रिएजेंट भी यूज़ किया जा सकता है और रिएजेंट की प्रेजेंस में एलाइलिक हेलोजिनेशन पॉसिबल है और वो रिएजेंट है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जिसे बोलते हैं NBS. N-bromosuccinimide. It is the structure of N-bromosuccinimide. In presence of N-bromosuccinimide, further हेलोजिनेशन विल टेक्स प्लेस एट एलाइलिक पोजीशन. अब यहाँ पर ब्रोमो है तो डेफिनेटली ब्रोमिनेशन ही होगा. और वन मोर थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, ये रिएक्शन या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी या फिर लाइट की प्रेजेंस में. विद NBS हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड लाइक दिस. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. स्ट्रक्चर बनाते हैं NBS का. in presence of light और peroxide, then allylic position पर bromination like this. और साथ में एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज सक्सिनिमाइड. व्हाट इज दिस, सक्सिनिमाइड. You have to consider this one. ये तो था preparation of haloalkanes from unsaturated hydrocarbons and we also studied about the allylic halogenation. तो प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes with unsaturated hydrocarbon हमें किस किस के साथ रिएक्शन कराना है, या तो हेलोजन या फिर हेलोजन एसिड्स के साथ. हेलोजन्स के साथ कराते हैं तो ड्राई हेलोएल्केन्स बनते हैं और हेलोजन एसिड्स के साथ कराते हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होने पर वन प्रोडक्ट बनेगा और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होने पर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हेलोएल्केन्स मेजर प्रोडक्ट होंगे, रेस्ट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट.
और मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज जस्ट एंटी टू द मार्कोनिकॉफ वन, in which reaction will takes place in presence of peroxide and negative part of HBr will attach to doubly bonded carbon which has larger number of hydrogen atoms. और हमने इसके बाद जाना एलाइलिक हेलोजिनेशन. एलाइलिक हेलोजिनेशन या तो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए एट 500 डिग्री सेल्सियस पर, तब एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजिनेशन होगा, या फिर हम रिएक्शन कराएं NBS इट्स मीन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, तब अगेन ब्रोमिनेशन होता है एलाइलिक पोजीशन पर, लाइक this one. In next video we will talk about the mechanism of Markovnikov addition. Till then, goodbye.